خوبصورتی کی کمی اخلاق پورا کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا ناچز استاد شیخ پرویز۔ آج کی کلاس میں ہم پھر سے جوہر کی ساخت چیپٹر جو بچا ہوا تھا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کچھ 2 کلاسز میں، اب آج کے کلاس میں پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت، شروڈنگر کی موجی مساوات، آفباؤ کا اصول اور جوہری آربیٹل کے بارے میں۔ سب سے پہلے آج دیکھیں گے ہم ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت اس کو کہتے ہیں، غیر یقینیت۔ ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت، نام سے ظاہر ہو رہا ہائزنبرگ کا اصول تو ہے لیکن غیر یقینی طور پر۔ ہائزنبرگ نامی سائنسدان نے اس اصول کو پیش تو کیا لیکن غیر یقینی طور پر۔ اس نے کیا کیا؟ کئی تجربات کیے جوہر کے اوپر، ایسے یہ جوہر ایسی چیز ہے جس کے اوپر کئی سائنسدانوں نے تجربات کیے اور کئی سائنسدان تجربات کر کے اپنے نظریے کو پیش کیا۔ ابھی بھی جوہر کے اوپر تحقیقات جاری ہے اور بھی آگے چیزیں بہت سی جوہر کے بارے میں ہم کو معلوم ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت۔ ہائزنبرگ نامی سائنسدان نے جوہر کے اوپر تجربہ کر کے اس نے کیا کہا کہ مرکزے کے اطراف جو تیز رفتار سے الیکٹران گردش کرتے ہیں، اس الیکٹران کا ایک ہی وقت میں اس کا معیار حرکت اور اس کے جو ہے نا رفتار معلوم کرنا ناممکن ہے۔ اس کی مقام اور اس کی معیار حرکت، مقام کہاں پر ہے اور اسی وقت میں اس کی رفتار کتنی ہے، اس کی معیار حرکت کتنی ہے، وہ معلوم کرنا ناممکن ہے۔ بہت معلوم کیا لیکن معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ ناممکن ہے لیکن غیر یقینی طور پر ہم اس کے مقام کو اور اس کے معیار حرکت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت کہتے ہیں۔ کیا کہا کہ جوہر میں پائے جانے والے مرکزے کے اطراف جو تیز رفتار سے الیکٹران گردش کر رہے ہیں، وہ الیکٹران کا ایک ہی وقت میں اس کا معیار حرکت اور اس کا مقام معلوم کرنا ناممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بولتے ہیں کہ ابھی 2 بج رہے ہیں تو 2 بجے الیکٹران اس مقام پر تھا اور اس رفتار سے حرکت کر رہا تھا، ایسا بتانا ناممکن ہے۔ کبھی بھی کون سے بھی وقت پر انہیں کہاں پر بھی ہو سکتا اور کیسی بھی اس کی حرکت ہو سکتی، یہ ہے اس کے جوہر کے اندر پائے جانے والے الیکٹران کی رفتار۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ معلوم تو نہیں کر سکتے لیکن غیر یقینی طور پر ہم اس کے مقام کو اور اس کے معیار حرکت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس اصول کو ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت کہتے ہیں۔ اس نے ایک ضابطہ بتلایا کہ ڈیلٹا ایکس ڈاٹ ڈیلٹا پی مساوی ہے NH/π۔ اس ضابطے سے ہم کسی بھی جوہر میں پائے جانے والے الیکٹران کی معیار حرکت اور اس کے مقام کو ایک وقت میں نہیں بلکہ دوسرے کے مثالی وقت پر معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈیلٹا ایکس ظاہر کرتا ہے مقام معلوم کرنے کے لیے اور ڈیلٹا پی ظاہر کرتا ہے معیار حرکت معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس اصول کو ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے شروڈنگر کی موجی مساوات۔ شروڈنگر کی موجی مساوات۔ تو شروڈنگر نامی سائنسدان نے موجی مساوات کو بتلایا۔ کیا کہا اس نے کہ جب ہائزنبرگ کے اصول کے مطابق الیکٹران کے مقام اور معیار حرکت کو غیر یقینی طور پر معلوم کر لیتے ہیں تو اس کی توانائی کو یقینی طور پر معلوم کیا جاتا ہے۔ ایسی کس کے ایک مساوات کے ذریعے، اس مساوات کو شروڈنگر کی موجی مساوات کہتے ہیں۔ غیر یقینی طور پر تو مقام اور معیار حرکت کو معلوم کر سکتے، لیکن جب غیر یقینی طور پر مقام اور معیار حرکت معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی توانائی کو یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کہ اس کی توانائی کتنی ہے۔ اس میں ایک مساوات کے ذریعے اس مساوات کو شروڈنگر کی موجی مساوات کہتے ہیں۔ وہ مساوات کیا ہے؟ ڈیل سائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس ڈیل سائی بائی ڈی وائی اسکوائر پلس ڈیل سائی dz اسکوائر پلس 8π اسکوائر m اسکوائر بائی h اسکوائر مائنس پلس e مائنس v از اکوس ٹو 0۔ اس مساوات کو کہتے ہیں شروڈنگر کی موجی مساوات۔ یہ جو علامت ہے ڈیل کی علامت، اس علامت کو آپ اس طریقے سے ڈالیں گے
इसको कहेंगे डेल की अलामत, डेल बोलेंगे इसको। और उसके बाद जो एक त्रिशूल की तरह नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे सही, सही की अलामत है। तो डेल सही बाई डी एक्स स्क्वायर, डेल सही बाई डी वाई स्क्वायर, डेल सही बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। इस मसावात को श्रोडिंगर की मौजी मसावात कहते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी जौहर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की म्यारे हरकत को और उसकी मुकाम को गैर यकीनी तौर पर मालूम करते हैं, तो उसकी तवन्नाई को यकीनी तौर पर बतला सकते हैं। उस मसावात को श्रोडिंगर की मौजी मसावात कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हाइजेनबर्ग का उसूल गैर यकीनियत और श्रोडिंगर की मौजी मसावात समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे जिसको हम कहते हैं आफबाव का उसूल। आफबाव नामी साइंसदान ने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के लिए एक उसूल को पेश किया, आफबाव का उसूल। आफबाव का उसूल, आफबाव नामी साइंसदान ने एक उसूल पेश किया। कौन सा उसूल? इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने का उसूल। किसी भी जौहर की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है। इलेक्ट्रॉनिक की तश्कील किसको कहते हैं? जौहर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को तनाजुर में लिखना, सही तौर पर लिखना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जौहर है ऑक्सीजन, जिसका जौहरी अदद है 8। इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 और 3p6। ये है 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p4। ये जो है ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इलेक्ट्रॉन 2 क्यों आए, इसमें 2 क्यों आए, इसमें 4 क्यों आए, ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को किस तरीके से, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पहले आना, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पहले आना, ये बतलाना आफबाव का उसूल कहलाता। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को तराजुर में लिखना, तरतीब से लिखना इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहलाता, जिसको आफबाव नामी साइंसदान ने किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना वो बतलाया। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स की तवन्नाई देखी जाती है। तवन्नाई जिसकी कम होती है, उस तवन्नाई कम रखने वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दाखिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ दाखिल होंगे? सबसे पहले उस ऑर्बिटल में दाखिल होंगे जिसकी तवन्नाई कम से कम होती है। तवन्नाई को कैसा मालूम करेंगे? n प्लस लैम्बडे की अलामत से मालूम करेंगे। n प्लस लैम्बडे के जाब्ते से किसी भी ऑर्बिटल की तवन्नाई को मालूम कर सकते हैं। जैसे n जाहिर करता है ऑर्बिटल की तादाद को और लैम्बडा जाहिर करता है ऑर्बिटल में पाए जाने वाले उसके ऑर्बिटल की तवन्नाई को। जैसे यहाँ पर 1s है, 1s है तो ये 1 क्या है? और n है ऑर्बिटल की तादाद, और s क्या है? ऑर्बिटल की तवन्नाई। ऑर्बिटल्स की तवन्नाई हमने लास्ट क्लास में मकादरी आदाद में देखा था कि सिमटी मकादरी आदाद है, जिसको समरफील्ड नामी साइंसदान ने पेश किया। उसने क्या कहा कि बैजी शक्ल में जो है ना जौहर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना मरकजे से अपना मुकाम और फासला दोनों तब्दील करता है, जिसकी बुनियाद पर 4 ज़ेलिखोल तैयार होते हैं। कौन से ज़ेलिखोल? s, p, d और f। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की तवन्नाई भी उन्होंने बतलाई थी कि 0 होती है, p की 1 होती है, d की 2 होती है और f की 3 तवन्नाई होती। ये तवन्नाइयों को जाहिर करता है लैम्बडा और n जाहिर करता है उस ऑर्बिटल की तादाद। तो हमने क्या कहा? आफबाव नामी साइंसदान ने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में दाखिल होते हैं जिसकी तवन्नाई कम से कम होती है। ऑर्बिटल की तवन्नाई को हम n प्लस लैम्बडे से मालूम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसा दाखिल होंगे? जैसे एक मिसाल के तौर पर हमारे पास 3D है, 3D से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें दाखिल होते हैं? 4s में दाखिल होते हैं। क्यों 4s में दाखिल होते हैं? क्योंकि 4s की तवन्नाई कम होती है बमुकाबले 3D की। अगर हम इन दोनों की तवन्नाई देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 3D की तवन्नाई क्या होगी, इस जाब्ते को इस्तेमाल करना है। n जाहिर करता है 3 को, 3 लिखिए, और प्लस जैसा वैसा लैम्बडे को ये जाहिर करता है d की तवन्नाई, ऑर्बिटल d की तवन्नाई है 2, यहाँ पर 2 = 5। तो ये 5 क्या है? 3D की तवन्नाई है। और 4s की तवन्नाई कैसा मालूम कर रहे हैं? जाब्ते के जरिए n जाहिर करता है 4 को, 4 जैसा वैसा, प्लस जैसा का वैसा, s जाहिर करता है लैम्बडे को, लैम्बडा यानी कि s की तवन्नाई है, s की तवन्नाई है 0, 4 + 0 = 4। तो ये 4 क्या है? 4s की तवन्नाई है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3D से पहले 4s में दाखिल होंगे। 4s में दाखिल होने के बाद 4s कंप्लीट मुकम्मल पूरी तरीके से पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में दाखिल होंगे।
तो s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d इलेक्ट्रॉन में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे s ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर पूरे हो जाते हैं तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d में मुंतकिल होंगे, क्योंकि 4s की तमन्नाई कम है बमुकाबले 3d। तो अल्फा नामी साइंसदान ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में दाखिल होते हैं जिसकी तमन्नाई कम से कम होती है। ऑर्बिटल की तमन्नाई को n+λ से मालूम किया जाता है। अब सर अगर ऑर्बिटल्स की तमन्नाई एक जैसी हो जाए, एकसा हो जाए या मसावी हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन किसमें दाखिल होंगे? जैसे मिसाल के तौर पर है हमारे पास 3d की एक तमन्नाई है और 4p की एक तमन्नाई है। 3d की तमन्नाई है 5 जो अभी हमने देखा, 4p की तमन्नाई 4 प्लस p कितना है, p है 1 एन लैम्बडा जाहिर करता p की तमन्नाई को, p है 1, 4 + 1 = 5। तो ये 4p की तमन्नाई भी क्या है, 5 है और 3d की तमन्नाई भी 5 है। तो इलेक्ट्रॉन अब किसमें दाखिल होंगे? इलेक्ट्रॉन अब उसमें दाखिल होंगे जिसमें n की तमन्नाई कम होगी। n जाहिर कर रहा है 3 को 4 को, n जाहिर कर रहा है 3 को 4 को, तो n की तमन्नाई जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन फिर उसमें दाखिल होंगे तब जब दोनों की तमन्नाई एकसा या मसावी हो। 4p की भी तमन्नाई 5 थी, 3d की भी तमन्नाई 5 थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब n की तमन्नाई जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे, यानी कि 3d में दाखिल होंगे। ये मुकम्मल होने के बाद फिर 4p में दाखिल होंगे। तो इस तरीके से अल्फा नामी साइंसदान ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में दाखिल होते हैं जिसकी तमन्नाई कम से कम होती है। तमन्नाई को मालूम करने के लिए n+λ ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद क्या करना, अगर तमन्नाई एकसा या मसावी हो तो जिस ऑर्बिटल में n की तमन्नाई कम होगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल होंगे। इस उसूल को अफ़बाउ का उसूल कहते हैं। तो ये अफ़बाउ का उसूल था जो हमने अभी देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये तमाम चीजें जो मैं आपको बतला रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट मेथड में बात बतला रहा हूँ। अगर हम इसके ऊपर देखें, अफ़बाउ के उसूल के ऊपर ही देखें तो कम से कम 1 घंटा तो इसको जो है ना आपको समझाने के लिए मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से और जो है ना हर एक चीज आपको बतलाना है, बहुत सारी चीजें हैं वो बताने के लिए अगर बताएं तो वक्त बहुत लगेगा। उम्मीद करता हूं कि छोटी से मुख्तसर सी क्लासेस में आपको तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी। अफ़बाउ के उसूल को हम और अच्छी तरीके से समझा सकते थे, जैसे उसी में और मॉयलर का खाके के जरिए अगर हम लाए, मॉयलर का खाका होता है, कैसा इलेक्ट्रॉन तब उसमें जो है ना मुंतकिल होंगे, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड में मैं आपको बतला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जितना हो सके उतना तो कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए। थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेंट्रेट से मुस्तकिल मिजाजी के साथ वीडियोस को देखिए, इंशाअल्लाह ताला तमाम चीजें समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जोहरी ऑर्बिटल। जोहरी ऑर्बिटल, जोहरी ऑर्बिटल एक होता है और एक होता है अक़्दे मुस्तवी। एक होता है अक़्दे मुस्तवी या जोहरी ऑर्बिटल। अक़्दे मुस्तवी किसको कह रहे हैं? अक़्दे मुस्तवी उस ऑर्बिटल को कहते हैं जिस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 0 हो, यानी जौहर में जो मरकजा होता है, मरकजे के अतराफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल्स पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी ऑर्बिटल्स पर इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हो बल्कि 0 हो उनकी तादाद, या इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल पर नहीं हो, तो उस ऑर्बिटल को अक़्दे मुस्तवी कहते हैं। और जिस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान आजम तरीन हो, बहुत ज्यादा ऑर्बिटल्स पर उस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, तो उस ऑर्बिटल को हम कहते हैं जोहरी ऑर्बिटल। जोहरी ऑर्बिटल 4 किस्म के होते हैं। एक होता है s ऑर्बिटल और दूसरा होता है p ऑर्बिटल, तीसरा होता है d ऑर्बिटल और चौथा होता है f ऑर्बिटल। 4 किस्म के जोहरी ऑर्बिटल होते हैं। जोहरी ऑर्बिटल किसको कह रहे हैं? जिस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान आजम तरीन हो उस ऑर्बिटल को जोहरी ऑर्बिटल कहते हैं, और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 0 हो उस ऑर्बिटल को अक़्दे मुस्तवी कहते हैं। तो s ऑर्बिटल है जिसमें हम इससे पहले देखा है कि इस ऑर्बिटल की तवन्नाई 0 होती है और ये शक्ल का होता है, कुर्रवी शक्ल का होता है और ये सिर्फ एक ही हल्के को रखता है, एक ही हल्का इसमें पाया जाता है s ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। s ऑर्बिटल कुर्रवी शक्ल का होता है जिसकी तवन्नाई 0 होती है और उस ऑर्बिटल में एक ही हल्का पाया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये s ऑर्बिटल है।
पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 ज़ेली खौल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग px, दूसरा होता है py और तीसरा होता है pz। px, py, pz 3 ज़ेली खौल होते हैं और इसकी साख्त होती है मुकद्दर नुमा, इस तरीके की होती है, डैम्बल शेप जिसको हम लोग कहेंगे, मुकद्दर नुमा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मुकद्दर नुमा, डैम्बल शेप। पी ऑर्बिटल की साख्त होती है मुकद्दर नुमा, इसकी तवन्नाई होती है 1 इसकी तवन्नाई होती है और इसमें 3 हल्के पाए जाते हैं, 1 2 3, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और पहले वाले हल्के को कहते हैं हम लोग px, दूसरे को कहते हैं py, तीसरे को कहते हैं pz। पी ऑर्बिटल में 3 ज़ेली खौल पाए जाते हैं, px, py, pz। उसकी साख्त होती है डबल शेप मुकद्दर नुमा जिसको हम लोग कहते हैं और इसकी तवन्नाई होती है 1, 3 हल्के पाए जाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरीके से डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 ज़ेली खौल पाए जाते हैं। एक होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर x। ये 5 ज़ेली खौल पाए जाते हैं और इसकी साख्त होती है दोहरे मुकद्दर नुमा, इस तरीके से दोहरे मुकद्दर नुमा इसकी साख्त होती और इसकी तवन्नाई होती है 2 तवन्नाई होती है और इसमें 5 ज़ेली खौल पाए जाते हैं, 5 ज़ेली खौल पाए जाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले वाले खौल को कहते हैं dxy, दूसरे को dyz, तीसरे को dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर x। ये 5 ज़ेली खौल डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं जिसकी तवन्नाई 2 होती है, दोहरे मुकद्दर नुमा उसकी साख्त होती है और ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। वैसे ही एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल में 7 ज़ेली खौल पाए जाते हैं, 7 ज़ेली खौल इसमें होते हैं, 7 ज़ेली खौल है और ज्यादा से ज्यादा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तवन्नाई होती है इसकी 3 और शक्ल होती है इसकी पेचीदा। इसकी कोई साख्त नहीं होती बल्कि इसके कई साख्तों में पाया जाता है, इसलिए इसकी साख्त होती पेचीदा और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 ज़ेली खौल होते हैं और इसकी तवन्नाई होती है 3, एफ ऑर्बिटल वो कहलाता। तो 4 ऑर्बिटल से जिनको हम जोहरी ऑर्बिटल कहते हैं, जोहरी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान आजम तरीन हो और जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान 0 हो वो अक़द मुस्तवी कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको श्रोडिंगर की मौजी मसावात, हाइजेनबर्ग का उसूल गैर यकीनियत और जोहरी ऑर्बिटल अक़द मुस्तवी और अगवा का उसूल समझ में आया होगा। इसके बाद हम फिर से और कुछ चीजें हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन से, जैसे रोशनी के बारे में हमको पढ़ना है और तूले मौज के बारे में हमको पढ़ना है, रोशनी के बारे में तूले मौज के और ताद्दुद मालूम करने के लिए कुछ हिसाबी सवालात है वो भी हमको देखना है। वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इजाजत चाहता हूँ आपका नाज़िर उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज।